Evening. Thank you so much, Tigmanshu ji, for coming down, especially for this. We are humbled. अब तो सच बोल दे। पाकिस्तान में जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे। Tigmanshu Dhulia, a master storyteller who redefines Indian cinema. His debut Hasil delved into the gritty world of student politics. अब जो इलेक्शन ईमानदारी से होगा। Best wishes from Ranvijay Singh. Ranvijay भैया! Then came Pan Singh Tomar, a riveting tale of an athlete turned rebel, earning him a National Film Award. From the gripping Sahib Biwi or Gangster trilogy to captivating web series like The Great Indian Murder and Criminal Justice, his work spans diverse genres and platforms. As an actor, no one else could have played Vidhayak Ramadhir Singh better in Gangs of Wasipur, a character etched in cinematic history, a visionary, a creator, a force in Indian cinema. This is Tigmanshu Dhulia. That aside, I thought I will prepare well for this interview. But something inside me said, Karma, तुमसे ये ना हो पाएगा. आप ही बोल दीजिए, कर्मा तुमसे नहीं ना हो पाएगा. नहीं, मैं ये डायलॉग बोलता नहीं हूँ उसे. उसका मैजिक खत्म हो जाएगा ना. मैं उतने अच्छे अंदाज से बोल नहीं पाऊंगा जितना फिल्म में बोला है. तो मैं वो मैजिक तोड़ना नहीं चाहता. अभी पैसे लेता हूँ डायलॉग बोलने. सर वो तो बाद में कर लेंगे. So our dear MC said we want to involve the audience as much as possible. So right from the beginning, I want to do that. Subject is very clear. We need to inspire a new wave of young filmmakers from the Northeast, and we have some and who we are very proud of. So what I'm going to do is a list of topics that we can discuss initially. I want the topics to be driven by the audience. So I'll read out a word and you'll have to scream on top of your voices if you want me to start that conversation on that point. Okay. So the first word is his life. No, you have to shout. Nah, yeah, you know. Option 2, work. इसका थोड़ा loud है. Sex life. इसका loud उतना नहीं है. चलो नहीं पूछेंगे. Tigmanshu Dhulia as an actor. हर्ट हुआ ना आपको? कितना हर्ट हुआ? मुझे बहुत बुरा लगता है. कभी कभी कोई मिल जाता है एयरपोर्ट पे और बोलते हैं सर एक बात कहनी है. मैंने कहा कहिए. यू आर अ बेटर एक्टर देन अ डायरेक्टर. मुझे बहुत बुरा लगता है. तो अभी I'll ask you once again. Tigmanshu Dhulia as an actor. अब कौन हो गया ना? Thank you. Finally, as a director. Okay, now let's get to the point. First question, as I was walking in, one of our directors, Pallavi, said that I have to ask this question. She asked me to put it in a better way. But I think the first question is the question I'm going to start with. As a director, what is that moment that you decide, yes, this is it. This is the movie that I want to make and will be great? Various reasons. It's not just one. See, we all know that cinema is not about 2 talking heads or 3 talking heads. It's a visual medium. So if the story kind of gives me that facility to make visual magic, then that's one reason. Then the other reason is, I mean, you look back at your work, the kind of work you've done, where you've faltered. I mean, I do that all the time.
And then you say, okay, this is something which I have not done, but it's still within my playing range. That is one reason. Then I see the kind of films which are coming out. So, okay, if you think you can break the clutter, that's another reason. I think these are the few reasons which kind of makes me go forward. So is it a, very, for want of a better word, is it a very formalized, formal, kind of scientific kind of a formula that you use to come to a conclusion? Or is there a gut feeling, a director's, an actor's gut feeling that's there that says yes? Filmmaking is an expensive, it's a very expensive effort. ये पोएट्री लिखना, कहानी लिखना नहीं, कमरा बंद किया, 4 कागज काले कर दिए, उससे नहीं होती, पैसे बहुत लगते हैं. तो like I said, it's a bit of both. Gut, of course, gut feeling तो है ही है. And ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको, ये सारी reasons. दूसरा आपको अपने मालूम है कि जैसे मैं आउट एंड आउट रोम कॉम उस तरह की लव स्टोरी जो कमर्शियल होती है मैं बना नहीं सकता. मुझे मालूम है मैं नहीं बना पाऊंगा. मैं ऐसी पिक्चर देखता भी नहीं हूँ, बनाना छोड़ो, मैं देखता भी नहीं हूँ ऐसी फिल्में. तो वही बाकी जो जिंदगी देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम, वही बात है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हासिल, द फेमस सीन at the Kumbh, which you shot guerrilla style. Nobody knew that a movie was being shot. When you shot that scene, and I believe at that time that was the largest congregation of the Kumbh, something special was there, and we were following it in the news. When you shot that, you didn't have money. So how did you do it? My moti script was done, a sketchy screenplay was there, and my actors had agreed, Jimmy, Irfan, but I did not have a producer. मैंने climax रख दिया था कुंभ मेले में. वो 2000 का कुंभ मेला था, 124 years वाला. 5 करोड़ लोग थे एक दिन में वहाँ. 5 crores. ऑस्ट्रेलिया की आबादी है पूरी. तो प्रोड्यूसर था नहीं. Some friends got money from home. So we could manage to do the wide shots of the climax first. And then I showed those shots to a few producers and eventually I got one. So to all the, future directors and actors here, is it a good idea, and you know that filmmaking is an expensive art, is it a great idea to take a plunge like the plunge you took, knowing that you have an idea, you believe in that idea, but will there be a financial backer or not? Is it a good idea for them to jump in like that? Yeah, for your first you must do it. For पहली पिक्चर के लिए तो कोड लगानी पड़ती. उसके बाद आपको आपकी पहली पिक्चर से ही पहचाना जाता है हमेशा. तो पहली पिक्चर अगर ऐसी है जिसमें आपको भले ही बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस ना मिले, लेकिन तारीफ हो, तो उसके लिए तो आपको प्लंज लगाना ही पड़ेगा. नहीं तो बाकी रेगुलर आपने कोई फिल्म बनाई जिसके लिए आपको प्रोड्यूसर मिल गया है, आपने देख लिया ओके ऑल दैट बॉक्सेस आर टिक्ड, proper budget, then I think it will be an ordinary film. And how important is it for a director to have fantastic relations with the family that you work with, your actors, the cinematographers, because you are moving around. And we always see that there is a clique, one director will have his set of people who he believes in, and that gang will work together, and for many films. How important is it? For me, it's very vital that I work with with friends. Because I personally enjoy, film के जो भी process होता है, pre-production, shooting, post-production, so I enjoy shooting the most. It's like a picnic for me. We go to a new place, completely small place, outdoor. तो दोस्त रहते हैं, तो वो एक कभी भी किसी को बुला लो, मैं बहुत ज़्यादा प्लान वे में शूट करता भी नहीं हूँ. लोकेशन अच्छी लगी, रुको यहाँ शूट करेंगे. तो उसलिए इस तरह का अगर आपका टेम्परामेंट है, डिसिप्लिन है फिल्म मेकिंग का, then you need to have good friends and honest people with you. Even your cameraman and the dolly operators, image operator, steady cam guy. When my unit
I mean, we all work together. मैं बोलूँगा पेड़ पे डॉली लगा दो, लगा देगा. टूट गया था? नहीं, वो नहीं टूटेगा. नहीं, कुछ हो गया था ना, कि ये वो कभी नहीं हो सकता. वो लगाएगा. क्यों लगाएगा? क्योंकि मैंने कहा है. आपने क्यों कहा? मुझको वहीं से चाहिए शॉट. आपको क्यों चाहिए वहाँ शॉट? ये तो एक नेवर एंडिंग बहस है. मेरे कहने का मतलब कुछ और था, आपको समझ जाना चाहिए था. नहीं, मुझे थोड़ा जर्नलिस्टिक साइड से लगा ना कि किसी को रिस्क है, कोई पेड़ से गिर जाए. मेरा कहने का मतलब है कि मेरी यूनिट जो है, मैं खुद अपनी यूनिट के लिए वी वर्क एज अ फैमिली. जैसे लड़की की शादी हो रही है. So that is the message that I wanted to get out for all you young filmmakers, that you know that is the team that you should inspire to build. Somebody वो चने का झाड़ में भी जो चढ़ जाए, तब उन लोगों के साथ आप करने में वो बिकॉज यूनिट आपको रिस्पेक्ट इसलिए करती है बिकॉज वो आपको देखती है कि जितना काम हम कर रहे हैं, लाइट बॉय कर रहा है, उतना ही काम डायरेक्टर भी कर रहा है. मैं मॉनिटर के सामने बैठ के पिक्चर नहीं बनाता. सबसे आगे मैं ही चलता हूँ, फिर मेरी यूनिट पीछे चलती है हमेशा. मैं बहुत स्टूडियो में बैठ के पिक्चर नहीं बनाता हूँ. मैं रियल लोकेशन मुझको पसंद है, तो उतनी जहाँ फैसिलिटीज नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, और उसी का मजा है. क्यों? ये मेरी फितरत है, इसलिए. क्यों है आपका फितरत है? अब वो तो माँ बाप से पूछना पड़ेगा मुझको. ये ऐसा तो नहीं कि मुंबई बहुत महंगा हो गया इसलिए आप देहात साइड में जा रहे हैं, थोड़ा कॉस्ट भी कम हो जाता है? नहीं, बॉम्बे में शूटिंग करने में मुझे मजा नहीं आता. स्टूडियो के अंदर बैठ के नहीं अच्छा लगता. Because that feel is not there. हाँ, There's a certain rawness to your movies. यस. वो एजीनेस जो है वो रियल लोग एक्ट. देखिए, एक्टर के लिए भी जैसे कि हमारे नाट्यशास्त्र में कहा है कि एक आंगिकम अंग से करते हैं, वाचिकम बोल के करते हैं, एक आहार्य अभिनय भी होता है जो कि कॉस्ट्यूम से और मेकअप से एक्टर को हेल्प मिलती है. उसी तरह मुझे लगता है लोकेशन भी एक्टर को, अगर आप रियल लोकेशन पे जाओगे परफॉर्मेंस 100% बेटर होगी बजाय स्टूडियो के अंदर. आजकल के एक्टरों में और पुराने एक्टरों में क्या फर्क है? आजकल के एक्टर ज़्यादा डिसिप्लिन है, टाइम पे आते हैं, लाइनें याद होती हैं. आपने कहीं इंटरव्यू में बोला था कि 1 मिनट में भूल जाते हैं कि आपने वो तो ये एकदम अभी जो बच्चे हैं, हाँ, वो उनके साथ प्रॉब्लम है. उनके साथ प्रॉब्लम है बिकॉज मैंने आप ही लोगों को शायद बता रहा था, आज हम लोग बात कर रहे थे कि आई जस्ट मेड अ शो कॉल्ड गर्मी अगेन ऑन स्टूडेंट पॉलिटिक्स ऑफ टुडे. तो वो बच्चे ही थे उसमें, सब MA फर्स्ट ईयर के, सब 22-23 साल के बच्चे, थोड़ा थोड़ा थिएटर किया. इस जनरेशन का कंसंट्रेशन लेवल बहुत खराब है, ऑलमोस्ट जीरो है. आप उनको डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट करिए कि भाई कमरे में आना है, यहाँ पे जाना है, टेबल पे फोन रखा है, फोन उठाना है, बाहर चले जाना है. इतना सिंपल. ओके, रेडी रेडी रेडी, 8 मिनट हुए, बंदा भूल गया क्या बोला है उसको, 10 सेकंड के अंदर भूल गया. और ये बहुत बार हुआ, मतलब कई 100 बार हुआ मेरे साथ. वर्किंग विद दोस बंच ऑफ एक्टर्स. आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन. और ये तो एक्टिंग है, पता नहीं और किस किस लेवल पे इफेक्ट कर रहा होगा ये. I also think you said in one of those, you know, it's because the mobile phones, ये जो आजकल रील देखते हैं ना, इससे पागल हो जाते हैं लोग, and then you're distracted, so your spatial awareness of what's around you or what you're listening to is gone, because you're listening to you for 1 minute and then you are watching Mike Tyson or somebody's reel on your mobile and then you get lost totally. So whenever, my dear audience, if you have a question because of the current topic that you are discussing, please scream very loudly to interrupt us. Then I'll allow you to ask that question. But ask a question. Don't give gyan, because between us we have got a lot of gyan. That gyan we can always give you off the thing also. So whenever you have a question, now we are talking about direction. So if anybody has a question on direction, especially the younger filmmakers, can you just scream and ask that question? तुमसे ना हो पाएगा. Not loud enough, yeah? Yes. हाँ, yes. आप पूछिए ना. Ask a question. ज्ञान मत देना, मैंने वार्निंग दे दिया. फिर पीछे ले जाके बहुत ज्ञान देंगे.
So, hello, my name is Mustafiz Ahmed, and sir, respects, and the topic is the cradle of meaningful cinema. So, sir has mentioned that in the future generations we have new form of cinema, vertical cinema is also there. So, what is your opinion on vertical cinema, AI in cinema, and all this stuff that are evolving, and it is like being used in nowadays films and many artists. So, what is your opinion on that? बेहतरीन क्वेश्चन. हाँ एकदम टॉपिकल है. AI is a good, very efficient librarian. That's it. As far as हमारा फिल्म मेकिंग और क्रिएटिव और चीज़ों के लिए मेडिसिन में और लॉ में और वहाँ हो सकता है किसी और. वो क्या करेगा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क है, तो वो इवेंचुअली फॉर्मूला ही देगा आपको. क्रिएट तो नहीं कर सकते यही कभी. तो हम लोग खुश हो, बचे रहो, अच्छा है, जो होगा ये यही से निकलेगा दिल से. और दिल को AI मत बनाना, आर्टिफिशियल मत बनाना, बस यही है मेरा कहना. Thank you, sir. मैंने कुछ देर पहले एक AI से पूछा था. I asked ChatGPT, give me a very difficult technical question to ask a renowned film director of Indian cinema. तो ChatGPT ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो वो मैं क्वेश्चन पढ़ूं. ChatGPT पसंद नहीं है इसको. How do you balance the use of focal length and aperture to maintain both the visual intimacy of your subject and the narrative context of their environment, especially while working in unpredictable low light conditions without compromising the naturalism of the moment? क्या क्वेश्चन दिया? क्वेश्चन याद ही नहीं है. ये मेरे कंसंट्रेशन लेवल से नहीं है. मतलब ये आपका बेसिकली फोकल लेंथ और अपर्चर को कैसे यूज करें, इन संक्षिप्त में मैं वो एक्टर और कैमरा और एक्टर के बीच में जो डिस्टेंस को मेंटेन करके मूव करो और ट्रैक करो. और बहुत सारा था, इंटीमेसी भी था उसमें लो लाइट भी है, क्योंकि लाइट भी आपका लो है, फिर भी आपको एक सर्टेन इंटीमेसी पकड़ना है. और उसके बाद लो लाइट भी है, आसाम में हो तो बारिश भी होगा. भाई साहब एक बताओ, ये काम मेरा नहीं है. मैं डायरेक्टर हूँ, ये सब मेरे जो कारीगर है ना उनका काम है. मैं बोलता हूँ ये चाहिए, वो करते हैं. Okay, anybody wants to scream? Yes, sir. Yes, please go ahead. Hello, Himanshu sir. Tirab here. I am an aspiring filmmaker, yet to make my first film. I have a very basic and simple question for you. If you were to give me advice for making my first film as a director who doesn't have a producer, what will it be? पैसा निकालो कहीं से. कहीं से. हाँ, जुगाड़. You mean जुगाड़, right? जुगाड़ करो पैसा और बना दो पिक्चर, सब हो जाएगा. कूदना पड़ेगा पहली पिक्चर में, तो कूदना पड़ेगा ही पड़ेगा. नेचुरली प्रोड्यूसर अगर नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी पिक्चर बहुत कमर्शियल नहीं है, यानी थोड़ा नए अंदाज की फिल्म होगी, नए स्टोरी टेलिंग में कुछ नयापन होगा. वही है, वही करना चाहिए. और ये करने के लिए, पहली फिल्म बनाने के लिए, तो एक अटेम्प्ट तो मारना ही पड़ेगा. कुछ करो, बैक बोरो स्टील, जस्ट मेक इट. Thank you sir. कल लिखूंगा मैं. ऑन ए कॉन्ट्रेरी मेरे पास माइक है सर, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, बट यहाँ सामने बैठा हूँ जो सर, ये यहाँ का MC इधर ही बैठा हूँ. हाँ, तुमको तो चिल्लाना ही पड़ेगा. नहीं सर, ये माइक है इसलिए कम धीमी आवाज में भी बोल सकता हूँ. ठीक है सर, ये एक सवाल है जो मोस्टली हम लोग यहाँ पे फेस करते हैं. जब भी हम कोई फिल्म का बजट बनाते हैं तो बहुत अच्छा खासा होता है. अच्छा खासा आपने खुद बताया कि ये एक्सपेंसिव बिजनेस है. तो जब हम प्रोड्यूसर के पास जाते हैं उसका आधा से भी कम हो जाता है. तो आई एम श्योर ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा. तो उस दौरान मतलब जो बजट इतना कम हो जाता है, तो उस हिसाब से आप अपने लोकेशंस हो या प्रोडक्शन में कम कर देते हो, या फिर आप रिस्क लेके सबको मना के कैसे करते हैं? हाउ डू यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? या तो अगर ऐसा प्रोड्यूसर है जिसने सीधे का आधा कर दो, तो ऐसे प्रोड्यूसर का काम ही नहीं करना चाहिए. पहली बात ये है.
ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं, उसका इम्तिहान हो गया, वो फेल हो गया उस इम्तिहान में, उसके साथ काम मत करो। दूसरा, अगर तुमको प्रोड्यूसर चाहिए, तुमको लगता है इसको मैं सेट कर लूंगा, तो और ही ज्यादा इन्फ्लेट करके बजट तुम अगर उसको काटना है। फिर तीसरा, जैसे हमारे साथ हुआ था व्हेन वी वर मेकिंग मानसिंह तोमर, तो तब वो रिसेशन वाला टाइम आया था 2009 में जो हुआ था। तो मैंने सोचा था कि मानसिंह तोमर को मैं जो बीहड़ के जो डेकॉइट वाले सीक्वेंस है उसको एनामॉर्फिक शूट करके बड़ा एकदम सर्जियो लियोने वेस्टर्न की तरह, आपकी फिल्म की तरह, और जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है वो मैं 16 mm करूँगा, थोड़ा इजीली हैंडल होगा, रनिंग के शॉट्स ये वो होगा। तो रिसेशन हो गया, यूटीवी ने बजट काट दिया, तो फिर भी हमने किया, मतलब इरफान ने भी कम पैसे लिए, स्लैश हो गया, मैंने भी कम पैसे लिए, और पूरी पिक्चर फिर 16 mm पे ही बनाई हुई। बहुत बेहतरीन फिल्म है सर, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो वही तो लोग सूंघ लेते हैं पिक्चर की ना, नहीं तो सभी पिक्चरें हिट हो जाती। सर वो टाइम पे 2 फिल्में आई थी, मुझे अभी भी याद है। एक था शायद करीना कपूर और उनका स्टार एक मैं और एक टू, ऐसा कुछ। उसी टाइम पे आपकी फिल्म भी लगी थी। मैं फोर्सफुली अपनी वाइफ को, नाउ माय वाइफ देन माय गर्लफ्रेंड, उनको जोर जबरदस्ती लेके गया, ये फिल्म एक बार देख लो, उसके बाद तुम जब भी जो भी बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। और थैंक यू फॉर गिफ्टिंग अस मानसिंह तोमर सर। उसके बाद से आज मेरा ही चलता है घर पे। थैंक यू। वाइफ का नाम क्या है? सुनैना। नाम लेके बोलो यार, ऐसे थोड़ी होता माय वाइफ। हाँ, so for those who of you who clapped like loudly when he said that look for another producer, दूसरा प्रोड्यूसर ढूंढ के देखो, वो जो आधा पैसा दे रहा है वो भी पैसा दे रहा है, चुपचाप वो आधा पैसा ले लो और उसमें कुछ जुगाड़ कर लो। ऐसा ऑप्शन नहीं, नॉर्थ ईस्ट में मुश्किल है सर। आई एम ब्रिंगिंग देम टू रियलिटी, नॉट गेटिंग देम टू एक्साइटेड कि मतलब जोर से क्लैप करे, बाद में वो पैसा जो मिल रहा था वो भी नहीं मिला। अब मूवी बनाने का आर्ट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे वी आर मेकिंग अ बायोपिक ऑन से बॉक्सिंग, इंडियन बॉक्सिंग स्टार, यू नो, ह्यूज स्टार हुज डन वेरी वेल एंड ऑल। जब हम लोग वो पिक्चर देखने जाता है, बॉक्सिंग कम होता है, वो गाना वाना ज़्यादा हो जाता है। तो when you made Mansingh Tomar, we saw that grit, we saw that guy running, we saw how good a marksman was it. So the build-up was good. What happens with these movies when you are making a movie on a battle, a famous battle, and you don't see a battle? What is going wrong there? I didn't get your question. ये सच में नहीं समझ में आया। जब पिक्चर बनाते हैं, जैसे स्पेशली बायोपिक्स, आपने बनाया मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर में हर पहलू को आपने, how he became athlete, a good marksman in the army and all. It was well, you know, done. Reached his conclusion in the end. But we have seen certain films, sometimes on a recent, I think 1 or 2 year old war movie, where there was very less war and more on the romantic side and this, that. What happens to the thinking process there? मैं दूसरों के काम पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, उनका काम है। तो लेकिन बायोपिक्स में ज़्यादातर मुझको ये गाने वाने जो होते हैं, जैसे एक बार मैं बायोपिक पे काम कर रहा था डॉक्टर कोरियन की, अमूल का जो उन्होंने किया, तो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर थी, तो हैं वो, तो उन्होंने जब स्क्रिप्ट हो गई, अच्छे से होगी, मैं डॉक्टर कोरियन से मिला 2-3 बार, आनंद जा करके बहुत रिसर्च किया, तो कहते हैं उसमें गाना डाल दो, हस्बैंड और मदर। अरे मैंने कहा डॉक्टर कोरियन गाना गाएंगे, मैंने पीछे छोड़ दिया, मैंने नहीं की पिक्चर। इवेंचुअली अभी कोई उस पर अब भी जाके कोई उस पर काम कर रहा है, ठीक है, पता नहीं गाना रखेंगे कि नहीं, तो इसलिए ये सब करना नहीं चाहिए बायोपिक्स में गाने वाने। हाँ, तो शायद मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा था। हाँ, तो हासिल में आते हैं वापस। You initially wanted Manoj Vajpayee, I think, if I'm not mistaken. But Farhan was closer to you. He was your, Irfan was a great friend of yours. Then why did you go to Manoj Vajpayee first? I wanted to make my first film, वो मुझको बनानी ही थी, तो मैं सेल्फिश हो रहा था, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मनोज की
सत्य आ चुकी थी, चल भी गई थी। मनोज का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर भी बहुत है, मुझको मनोज भी बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। बैंडेड क्वीन से हम लोग हैं साथ में उसके पहले से, थिएटर डेज से। तो मैंने कहा ये आ जाएगा मनोज तो मुझको प्रोड्यूसर मिल जाएगा। मैं गया उसके पास, घात करके फिल्म थी उसकी शूटिंग कर रहा था। तो मैंने सुनाई, उसके उस वक्त समझ में नहीं है, उसने बोला मैं विलन नहीं करूँगा। मैंने समझाया कि ये विलन उस तरह का नहीं है, बट ठीक है, उसको उस वक्त लग रहा होगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए, वो नहीं। फिर तो मेरा सेकंड ऑप्शन मैंने कहा इरफान के साथ ही करता हूँ, जो होगा देखेंगे। ये बात He was finally हाँ, जो होना था a वो fantastic choice. The performance in that is like thundering in every aspect. But he also said that he didn't want to play the villain. That's why, I guess, one of the reasons why. वो मनोज, Yeah. yeah. And why didn't you want to play a villain? Sorry? Why didn't you want to play the villain? वो अब जो भी फिल्म में साइन की तो सब में हीरो था वो, इसलिए गाने वाले भी गा रहा था। Sir, I Dance have a करता है question. मैं। I have a question. तो जोर से बोलो ना, क्या है? ऐसे I have a question बोल के। हेलो सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी यू कीप मेकिंग फिल्म्स थ्रू आउट, एंड द क्वेश्चन इज दैट अभी आप अपने आप को कॉन्टेम्पोराइज कैसे करते हो? बिकॉज नाउ पीपल नो यू, यू गो समवेयर, पीपल नो दैट दिस इज तिग्मांशु धूलिया कमिंग। तो अभी आप ऐसे यंग जनरेशन के ऊपर कैसे फिल्म बनाते हो? हाउ डू यू रिसर्च और हाउ डू यू गो अबाउट इट, द होल थिंकिंग प्रोसेस? कैसे उनके जैसे कैसे सोचते हो आप? यंग जनरेशन जैसे? हाँ, मतलब डेफिनेटली इफ यू हैव टू थिंक। यार ऑनेस्टली अभी जो एकदम अब जैसे आई हैव अ डॉटर, शी इज 25 years old, वो भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर है। उसने सृष्टि एक बैंगलोर में वहाँ से 4 साल का कोर्स किया। तो उसकी जनरेशन वालों की बात करूँगा मैं। हाँ, मुझे तो बहुत डाउटफुल लगता है इस जनरेशन के साथ। और मुझको ऐसा लगता है मेरी अगर मैं मतलब हेल्थ प्रॉब्लम नहीं भी कुछ नहीं हुआ तो मैं बहुत लंबी इनिंग्स खेलूंगा। कंपटीशन है नहीं, बिल्कुल नहीं है कंपटीशन, बिकॉज ये यंग जनरेशन जो है ये भी अब फिल्मों की फिल्में बना रही है। एक जनरेशन टू जनरेशन, देखिए क्या हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था 47 में, तो लाहौर से भी लोग आए, लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी, बंगाल में भी थी, न्यू थिएटर्स वाले सब आए, बिमल रॉय सब लोग, सब बम्बई आए। अभी सब लोग अपनी अपनी दुनिया के लोग थे, बम्बई के बाहर के लोग थे, हर तरह के अपने कल्चर की कहानियाँ तमाम चीज़ें लेके आए, फिर उन्होंने सिनेमा बनाया जो बनाया। बिमल रॉय के पास सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर, हाँ, नेशनल अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने बंदनी, सुजाता, मधुमती, मूवी का ज़मीन, इस तरह की फिल्में बनाई, सक्सेसफुल फिल्म बनाई। अब ये महबूब खान तो अनपढ़ थे, वो टेबल पे घोड़े के नाल ठोकते थे, एक का क्लास नहीं पढ़ी उन्होंने, और मदर इंडिया बनाई, औरत बनाई, अंदाज बनाई, के आसिफ मुगल आजम बनाई, जिन्होंने 5th क्लास पास, फेल भी होंगे शायद। ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन अपनी दुनिया की कहानियां लेके आए थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लोग बॉम्बे में बस गए, फिर इनके बच्चे हुए, तो उन्होंने से बॉम्बे के अलावा कुछ देखा नहीं, या तो पापा के साथ सिर्फ कश्मीर में शूटिंग देखी है, छुट्टियों में न्यूयॉर्क, लंदन देखा, तो उन्होंने दुनिया हिंदुस्तान देखा नहीं। फिर उन्होंने फिल्मों की फिल्में बनानी, मतलब फिल्में ऐसी बनती ना, इसी को कहते हैं फिल्मों की फिल्में। अब फिर काफी सालों तक ये सब चलता रहा। फिर 2000 में हमारी जमात के लोग आए, नवदीप बैठा है, मैं हूँ, इम्तियाज है, सुजीत है, अनुराग कश्यप है, विशाल भारद्वाज हैं, ये सब फिल्म मेकर्स हैं। हम लोग भी बॉम्बे के नहीं है, सब बाहर से आए। हमने क्या, मैं बिमल रॉय हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे सिर्फ कहने का मतलब है हम अपनी दुनिया देख कर आए थे, वो एक्सपीरियंस लेके आए थे। अब हमारे ये जो बच्चे हैं, इन्होंने बॉम्बे के अलावा वही घूम रही है, तो उससे पता नहीं हमारी गलती होगी क्या हुआ, हमने तो बहुत कोशिश की यार। तो लेकिन ये जनरेशन जो है, तो मुझको लगता है इस जनरेशन को थोड़ा और समझना होगा, देखना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा। तो वो एक्सपीरियंस मुझे कम दिखता है, इसलिए नवदीप, वी आर गुड बॉस।